آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پختہ یقین ہے پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر اور ہاتھوں میں مہارت ہے۔ وسیع ذخائر کے ہوتے ہوئے مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ قدموں میں وسیع معدنی ذخائر اور ہاتھوں میں مہارت ہے، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے بڑھیں اور اپنے ملک کے لیے جدوجہد کریں۔ پاکستان معدنی معیشت میں عالمی رہنما کے طور پر ابھرنے کو تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا، بین الاقوامی ادارے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں۔ اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کا اہم جزو ہے۔ پاک فوج شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات اور سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی۔ معدنی صنعتوں کی ترقی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ آرمی چیف نے سرمایہ کاروں سے کہا، پر اعتماد پارٹنر کے طور پر پاکستان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یقین دلاتے ہیں معدنی دولت سے استفادے کے لیے آپ کی مہارت سے فائدہ اٹھانا اجتماعی قومی خواہش ہے۔ ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، معدنیات کی دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انجینئروں، ارضیات کے ماہروں اور ماہر کارکنوں کی ضرورت ہے۔ طلبہ کو تربیت کے لیے بیرون ملک بھی بھیج رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے قبائلی عمائدین کی کاوشوں کا اعتراف کیا اور کہا، بلوچستان کی ترقی، کارکنی کو فروغ دینے میں عمائدین نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالرز کے قدرتی وسائل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین، امریکہ، سعودی عرب اور یورپ کو سرمایہ کاری کی دعوت دی تھی۔ منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں کہا، پاکستان معدنی ذخائر استعمال کر کے قرض سے نجات پا سکتا ہے، IMF کو خیر بات کہہ سکتا ہے۔ پاکستان سے اب خام مال برآمد کرنے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ سرمایہ کاروں سے کہوں گا، پاکستان سے تیار مصنوعات برآمد کریں۔ Has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, coming up with feasibilities and solid evidence of partnership which will result into a win-win partnership. I would like to invite, on behalf of my government and provincial governments, all potential investors, because I believe in my investor is my master. پاکستان کے پاس ریکورڈک میں سونے اور تانبے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موزوں ملک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اتنے زبردست وسائل ہیں کہ بین الاقوامی کمپنیاں لازمی دلچسپی لیں گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا تھا، سرمایہ کاروں کے لیے قوانین کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ مارک بیرسٹو کا کہنا ہے کہ ریکورڈک پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ریکورڈک بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ مقامی آبادی کے لیے اسپتال، اسکول اور دیگر سہولتیں فراہم کریں گے۔ علاقے میں چھوٹے کاروبار کے فروغ میں بھی مدد کریں گے۔ First production is planned for 2028. The ongoing development of this resource is a key milestone, not just for Barrick, but also for Pakistan and the province of Balochistan. Reko Diq will be a major contributor to Pakistan's economy and will have a transformative impact on the underdeveloped Balochistan. It will generate thousands of high-paying jobs, promote the growth of the regional economy, and invest in development program. سابق وزیر اعظم نواز شریف سے سب سے بڑی عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے بانی نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ڈیجیٹل اثاثوں اور فیوچر ٹیکنالوجی میں نوجوانوں کی شراکت پر بات ہوئی۔ نواز شریف نے کہا، پاکستان جدید تبدیلیوں کا شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کو تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ نوجوانوں کو IT سکلز سکھا کر عالمی ڈیجیٹل مارکیٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب مستقبل کی ٹیکنالوجیز اپنانے کے لیے تیار ہے۔
आगे बढ़ते हैं। बानी पीटीआई के घर वालों समेत किसी को अडयाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर एहतजाज। बानी पीटीआई की बहनों का अडयाला रोड के शादी हॉल में धरना। 3 घंटे बाद पुलिस ने घर जाने पर रजामंद कर लिया। तमाम अफराद घरों को रवाना हो गए। इससे पहले गोरखनाते पर एहतजाज करते हुए बानी की तीनों बहनों आलिया हमजा, शफकत अवान, साहबजादा हामिद रजा समेत 11 कारकुन खुद पुलिस वैन में बैठ गए। गोरखपुर नाके पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों का पुलिस से आमना सामना हुआ। कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने तमाम गिरफ्तार अफराद को अडयाला रोड शाहपुर ले जाकर घर जाने की इजाजत दे दी। बानी पीटीआई की बहनों ने बानी से मुलाकात पर इसरार किया। करीबी शादी हॉल के लॉन में बैठ गए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर बताएगा ये क्या कुछ होता रहा, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी, आज मुलाकातों का दिन था और बानी पीटीआई की तीनों बहनें और दीगर रहनुमा जो है अडयाला जेल मुलाकात के लिए पहुंचे। गोरखपुर नाके के ऊपर पुलिस और कारकुनों आमने सामने हुए। पथराव के दौरान मियां अजहर जख्मी हुए। सरदार सलीम हैदर, सरदार मंसूर जो है ये मरी से ये लोग आए। इसके अलावा रावलपिंडी के दूर अफ्तादा इलाकों से और उमर अयूब और आमिर डोगर समेत जुनेद अकबर, बैरिस्टर गौहर वो भी यहाँ पे आए। लेकिन बानी पीटीआई की बहनों की जानिब से ये इसरार था कि आज वो हर हाल में मुलाकात के लिए जाएंगे। उन्होंने गोरखपुर नाके के करीब एक धरना दिया। पुलिस ने उनसे मुज़ाकरात किए, लेकिन मुज़ाकरात कर बार बार नाकामी के बाद इन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार करें और इसी आनन फानन वो उन गाड़ी में सवार हुए और उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से दूर लेके जाने की कोशिश की गई। जो करीब एक अडयाला रोड पर एक निजी शादी हॉल है, गाड़ी वहाँ पे पुलिस की आई और इन्हें ये लॉन में बैठ गई। बानी पीटीआई की तीनों बहनें बज़िद थीं कि वो उन्हें गिरफ्तार किया जाए और बगैर मुलाकात के वो वापस नहीं जाएंगी। कासिम भी उनके साथ थे, हामिद रजा थे और इसके साथ दीगर रहनुमा आलिया हमजा और समाबिया ताहिर अब जो है वो इस हाल से बाहर आई हुई हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही हैं। लेकिन सारा दिन जो है ये आज अडयाला रोड के ऊपर पुलिस और पीटीआई कारकुनों और रहनुमा आमने सामने रहे। जो सीनियर रहनुमा थे पीटीआई के वो कोशिश करते रहे कि जो तसादुम वाली सूरत हाल है उसे बचा जाए, रोकते रहे, कोशिश करते रहे। लेकिन कारकुन बज़िद थे कि वो अडयाला जेल जाएंगे, वहाँ धरना देंगे, लेकिन पुलिस ने भी इन्हें रोके रखा। इस शादी हाल में अच्छा बाबा ये बताएगा इस मामले पर जेल इंतजामिया की जानिब से क्या बताया गया है कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, एक तो जेल के बाहर की सूरत हाल थी और जेल के अंदर जो सूरत हाल थी वो जेल ज़राए ये कहते हैं कि उन हुकाम की जानिब से, जेल ज़राए की जानिब से कि कासिम और उनके बेटों की फ़ोन पे बात भी करवाई गई है बानी पीटीआई से, जबकि बानी जो बुशरा बीबी है उनकी फैमिली की भी मुलाकात करवाई गई है। और जो वकला वहाँ पे आए, वहाँ तक पहुँचे जिसमें बैरिस्टर गौहर थे और दीगर वकला थे, मुबशर थे, उन 6 वकला की भी मुलाकात कराई। जबकि इसके बरक्स जो है नियाजुल्लाह नियाजी और सुमान अकरम राजा इस बात को कहते हैं कि उनकी जो फहरिस्त दी गई थी वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दी गई थी। उसके बरक्स दीगर लोगों की मुलाकात कराई, उनकी मुलाकात नहीं कराई। जेल हुकाम इन सारी सूरत हाल को रद्द कर रहे हैं। उनको का जो आया उनकी मुलाकात भी करवाई गई और बानी पीटीआई के बच्चों से बजरिया व्हाट्सएप बात भी करवाई गई। तो जेल के अंदर की सूरत हाल डिफरेंट थी और जेल के बाहर जो है वो पुलिस और कारकुन आमने सामने रहे। जी ठीक है, बाबर मलिक इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। खबर है कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए हैं। आपको बताते चलें, अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए हैं। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते बताइएगा संजय। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर ताज हैदर, वो इंतकाल कर गए हैं। हाल ही में वो जो 21 मार्च 2021 में एक दफ़ा फिर सेनेटर बने थे। 2027 तक उनका टेन्योर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीन रहनुमा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कई मामला पर इनकी सपोर्ट हासिल थी। हमेशा पीपल्स पार्टी को आईनी मामला पर इनसे वो मदद लेते रहे थे। 8 मार्च 1942 में इनकी पैदाइश हुई और ताज हैदर आज कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। अब से कुछ देर पहले शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े निजी अस्पताल में सेनेटर ताज हैदर इंतकाल कर गए हैं। लगभग जो है वो इनकी जो उम्र है वो 83 साल थी और ये इनकी जो पैदाइश है वो 1942 में हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 1967 से ये वाबस्ता रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी जो कारकुन हैं उनके
साथ रहे हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी से इन्होंने कभी अपनी वफादारी तब्दील नहीं की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ उन्होंने काम किया, आसिफ अली जरदारी के साथ उन्होंने काम किया। वो मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। सिंध के हवाले से उन्हें अहम ओहदा दिया गया, तब रहे। पीपल्स पार्टी के साथ वो सैनिक में भी काफी अरसे तक रहे और इन्हें सितारा इम्तियाज अवार्ड जो है उनसे भी 2013 में नवाजा गया था। इसके अलावा इनकी तालीम जो है वो कराची के डीजे साइंस कॉलेज से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है और साथ ही साथ एक ऐसे पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर वो निखर कर सामने आए। उन्होंने अपनी पूरा सियासी कैरियर पीपल्स पार्टी के साथ भरपूर अंदाज में निभाया और अपने उम्र के आखिरी हिस्से में भी वो पीपल्स पार्टी के साथ वफादार रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल के ताज हैदर इंचार्ज रहे हैं और कई सालों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए हैं और सोशल मीडिया पर उनकी अहलिया की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची बारूद के ढेर पर है, बदअमनी अब नहीं रोक सकेंगे। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं इस शहर में चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। गैर कानूनी डंपरों के मालिक और ड्राइवर भी गैर मकामी हैं। इस वक्त बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है। कराची में बदअमनी हमने रोकी भी है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, ये बताने आए हैं। शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। कराची की बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मुकामी होता है। 52 थानों में 50 थानों में गैर मुकामी SHO थे। आजकल जिस तसलसल के साथ कराची में चलने वाले इल्लीगल, जिनके इजाजतनामे नहीं है, जिस हॉर्स पावर के ये डंपर्स हैं, उसकी शहरी इलाकों में चलने की इजाजत नहीं है। इनके मालिकान गैर मुकामी, इनके ड्राइवर गैर मुकामी। कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे, शर्जील मेमन का खालिद मकबूल को जवाब। कहा वो ताने दे रहे हैं जो माजी में बदअमनी के सबसे बड़े जिम्मेदार थे। आपने हजारों माओं की गोदे उजाड़ दी। एमक्यूएम को नफरत की सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। डंपर हादसों को जवाब बनाकर नफरत के बयान दिए जा रहे हैं। जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है एमक्यूएम के पास। इसीलिए ही एमक्यूएम जानबूझकर इस डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको जवाब बना के कोई बदअमनी की जाए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहेंगे कि अपनी उस मुर्दा सियासत को जगाने के लिए हम फिर नफरत अंगेज सियासत शुरू करें तो उसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते। मैं अपनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करता हूं। एमक्यूएम के कोई भी आज जो रहनुमा सामने बैठे थे वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करें। आप भी दोबारा इलेक्शन लड़ें, मैं भी इलेक्शन दोबारा लड़ता हूं। पता चल जाएगा कि आपके पास आवाम का मैंडेट है या आवाम का मैंडेट हमारे पास है। नहरों के मामले पर पंजाब की सिंध को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आबपाशी पंजाब काजिम पीरज़ादा कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरों के मामले पर गो अहेड दिया था। इरसा ने अपने हिस्से का पानी दिया, सिंध के पानी पर कैसे डाका पड़ गया? मामला एक्निक में जाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध आए, बातचीत के लिए तैयार हैं। सदर साहब ने इसके ऊपर गो अहेड, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर उनको ब्रीफिंग दी गई। मैंने सुना उसके अंदर उन्होंने उसके अंदर गो अहेड। वहाँ पे जो एहतजाज हो रहे हैं प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने मासेस को ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये तो अपने हिस्से में से उनको इरसा ने सर्टिफिकेट दिए, सिंध के पानी के ऊपर कैसे डाका पड़ गया। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट जो है एक्निक में जाए। यही एक्निक बनाई गई है, उसके अंदर कोई एक जमात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। पंजाब का मौकफ ये है, हम जो चीज कर चुके हैं उसके तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्निक में जाएगा। उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो अगर पंजाब तशरीफ लाए तो मुझे खुशी होगी उनकी मेजबानी करके। वफाकी हुकूमत सिंध की आवाज़ सुने, नहरी मंसूबे पर सिंध को साथ लेकर चलना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं नहरी मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में मुशावरत से बेहतर फैसला होगा। वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा करें। लाहौर में सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है, जल्द काम शुरू कर देंगे। तलबा यूनियन की बहाली ज़रूरी है लेकिन बदमाशी कल्चर नहीं चलेगा। जामियात में हिरासानी मुनशियात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
कराची किंग्स की PSL 10 के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ियों ने मुसलसल दूसरे रोज प्रैक्टिस की। गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। कराची के शेर अपने पहले मैच में हफ्ते को मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। कराची किंग्स ने PSL ट्रॉफी पर नजर जमा ली। हरीफों से मुकाबले के लिए कमर कस ली। खिलाड़ियों की मुसलसल दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। बैटर्स ने हेड कोच रवि बोपारा की निगरानी में प्रैक्टिस की। बॉलर्स ने बॉलिंग कोच शॉन टेट के साथ लाइन और लेंथ पर काम किया। टीम ऑनर सलमान इकबाल भी प्रैक्टिस के दौरान स्टेडियम पहुंचे। खिलाड़ियों से मुलाकात की। कोचेज ने ब्रीफिंग। गैर मुल्की स्टार्स की आमद का सिलसिला जारी। मोहम्मद नबी और एडम मिल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। डेविड वार्नर आज रात शहर कायद पहुंचेंगे। किंग्स PSL 10 में अपना पहला मैच हफ्ते को मुल्तान सुल्तान से खेलेंगे। कराची किंग्स के इब्तदाई 5 मैच होम ग्राउंड नेशनल स्टेडियम में ही शेड्यूल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ABI न्यूज़।